Students, today we'll study the third lesson of the book Vistas. The name of the lesson is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. Journey to the End of the Earth, as the name depicts, it talks about the end of the earth. We divide the earth or the globe into two extreme parts, that is North Pole and South Pole. And in the southern pole, we have a continent Antarctica. So we are going to study more about the continent Antarctica in this lesson. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present, and future, the Antarctica is the best place to go. Bon voyage. Tishani Doshi has herself written this lesson, right? This lesson is written in the first person, and the line says that अगर आपको किसी planet के history, past, present और future जानना है तो उसके लिए सबसे best place है Antarctica. Bon voyage. Bon means happy. Voyage is a journey by ship, and they are wishing us a happy journey by ship. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. The writer says कि इस साल के start में early, right? I found myself aboard. Aboard means on board. मैंने अपने आप को एक Russian research vessel, research which is used for research purposes. Vessel means ship. मैं एक Russian ship में थी. The Academic Shokolaski. The name of the ship was Academic Shokolaski, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. See the adjectives used for Antarctica. सबसे ठंडा, सबसे सूखा हुआ, सबसे विंडियस्ट, जहाँ खूब तेज़ विंड्स चलती हैं, उस कॉन्टिनेंट की तरफ हम जा रहे थे, एंड दैट कॉन्टिनेंट इज़ एंटार्क्टिका. माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. जो मद्रास का लैटिट्यूड है ऑन द ग्लोब, इट इज़ 13.09, right? So she started her journey from Madras, we call Chennai these days, and involved crossing 9 time zones. Time zones क्या होती हैं? Time zone is a region of the globe that observes a uniform standard time for legal, commercial, and social purposes. Time zones tend to follow the boundaries of countries instead of latitude. टाइम जोन क्या है? एक एरिया है ग्लोब पे, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम जोन्स हैं, राइट? जो वो अपने सोशल, लीगल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. यू माइट हैव सीन पीपल सेइंग कि अगर इंडिया में इवनिंग के 3:30 PM है तो इंग्लैंड में उस टाइम विल बी अराउंड 11 AM. तो दिस इज़ द डिफरेंस इन दी टाइम जोन. कहीं दिन है, कहीं रात है. तो जो इंडिया है, इंडिया हैज़ ओनली वन टाइम जोन जिसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. एंड शी हैड क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 checkpoints जहाँ इनकी चेकिंग हुई होगी, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres, right? 3 bodies of water, 3 oceans she crossed, and at least as many ecospheres. Ecosphere क्या होता है? एक geographical condition होती है that affect the life of organisms in a particular area. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane, and a ship. राइटर कहती हैं कि उन्होंने 100 आवर्स की जर्नी की, एंड शी हैड traveled by a car, that's on land, an aeroplane, right? In the air also she had traveled, and the last was she was traveling by a ship in water. So my first emotion on facing Antarctica's expansive means vast, white landscape. Antarctica में क्या है? पूरा स्नो है, तो it is total white scenery everywhere, and uninterrupted, undisturbed, blue horizon. Horizon क्या होता है? Horizon is a place which is seen at a distance where the sky seems to meet the earth. Uninterrupted, जहाँ कोई रुकावट नहीं है, कोई इंटरप्शन नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, एंड यू कैन सी द ब्लू होराइजन. आपको ब्लू स्काई ऐसा लगता है कि वहाँ कहीं दूर मीट कर रहा है, राइट? मीटिंग द आइस देयर इन एंटार्क्टिका. तो राइटर बोलती है जब शी फाइनली लैंडेड इन एंटार्क्टिका, तो जो उनका फर्स्ट इमोशन था, इट वॉज ऑफ रिलीफ. शी वॉज वेरी हैप्पी, सुकून मिला उनको. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. उसके बाद वो एकदम से, एंड प्रोफाउंड मीन्स वेरी लार्ज, वंडर, शी वॉज सरप्राइज्ड
हैरान हो गई वो. Wonder at its immensity. She wondered कि how immense, how vast, how huge this continent is. Its isolation. She wondered about the isolation कि कितना separated है ये from rest of the world. But mainly at how there could have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. उससे भी ज़्यादा हैरानी उनको इस चीज़ की होती है कि एक टाइम ये भी था कि इंडिया और जो एंटार्क्टिका था वो एक ही ज़मीन का टुकड़े थे. Part of history. Now the writer tells some aspects of history linked to Antarctica. 650 million years ago, इतने साल पहले, a giant means big, amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. You need to understand this properly कि 650 मिलियन ईयर्स पहले क्या था. एक जायंट, वेरी बिग, अमालगमेटेड होता है समथिंग विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट मैनी थिंग. यहाँ पे क्या था, बहुत सारी कंट्रीज़ का मिक्सचर था और एक सुपर सदर्न पार्ट में सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंदवाना था. राइट. गोंदवाना जो ये वर्ड है, ये इट्स अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स फॉरेस्ट ऑफ द गोंड्स, और गोंड्स एक ग्रुप ऑफ पीपल था लिविंग इन गोंदवाना एरिया इन इंडिया. तो गोंदवाना जो एक लैंड मास था, राइट, इट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द लैंड मासेस ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट. इनमें इस गोंदवाना सुपर कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी आज की? इट इंक्लूडेड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एंड न्यूजीलैंड. तो इतनी सारी कंट्रीज़ को मिला के एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सिंगल लैंड मास था जिसका नाम था गोंदवाना. इट डिड इंडीड एग्जिस्ट, कि ऐसा एक लैंड मास एग्जिस्ट करता था. एंड इट सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका. और ये लैंड मास उसी एरिया में था जहाँ पे आज का एंटार्क्टिका है. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन. लेकिन तब का टाइम अलग था, तब की चीज़ें अलग थी. ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन. तब ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन नहीं हुआ था. दे हैड नॉट अपीयर्ड ऑन द ग्लोब, ऑन द अर्थ. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर. और उस टाइम पे जो क्लाइमेट था वो बहुत गर्म था अभी एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट डेज climate of Antarctica, hosting a huge variety of flora and fauna. Because the climate was warm, so it provided uh, proper and appropriate, right, uh, atmosphere for a lot of flora and fauna to grow. बहुत सारे, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, fauna मीन्स एनिमल्स. तो क्योंकि उस टाइम क्लाइमेट गर्म था तो खूब सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ ग्रो करते थे. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंदवाना थ्राइव्ड मीन्स लिव्ड. 500 मिलियन ईयर्स तक तो गोंदवाना एज इट इज़ था. बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे. और उस टाइम जब डायनासोर्स स्टार्टेड डिसअपियरिंग फ्रॉम अर्थ, and mammals are those organisms who feed their young ones. जब ये mammals अर्थ पे आने लग गए, they started evolving. The landmass was forced to separate into countries. तब कुछ ऐसे जोग्राफिकल चेंजेस हुए एटमॉस्फेयर में कि ये जो बड़ा लैंड मास था गोंदवाना, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे. और ग्लोब पे उन कंट्रीज़ की शेप इस तरह से आ गई जैसे कि हमें आजकल देखने को मिलती है. टू विज़िट एंटार्क्टिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री. अगर आप एंटार्क्टिका को विज़िट करते हैं तो इट मीन्स आप उस हिस्टोरिकल लैंड को विज़िट करते हैं, राइट. यू आर बीइंग पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम. योर विजिटिंग एंटार्क्टिका विल हेल्प यू understand, right, from the place from where we have come, जिस जगह से हम आए हैं, and where we could possibly be heading. और हमें कुछ ये भी हिंट मिल जाएगा कि हम आगे अपने फ्यूचर में किस तरफ बढ़ रहे हैं जोग्राफिकली. It's to understand the significance of
कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। जब आप अंटार्कटिका जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप ये भी समझते हैं कि कॉर्डिलेरन फोल्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है। कॉर्डिलेरा एक कॉम्प्लेक्स रीजन है विद 3 डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंजेस, राइट, एंड इट इज़ फुल ऑफ रॉक्स। तो आप उस एरिया की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स. Pre-Cambrian is, pre means early, right? Cambrian is a part of Earth's history. Granite is a stone, right? Shields means an area which is full of granite. तो आप उसकी भी इम्पोर्टेंस समझते हो. Ozone and carbon. When you visit Antarctica, you understand the importance of ozone layer and the importance of carbon also, the presence of carbon dioxide also in the things. Evolution and extinction. You also understand the importance of evolution means birth, and extinction here means death. कि how things take birth and how they disappear, how they become extinct also from the surface of the earth. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. जब आप ये सोचते हो कि इतने मिलियन ईयर्स में इतना बड़ा चेंज आ सकता है, when you just imagine this thing, it can get pretty mind-boggling. Mind-boggling means which is difficult to understand, which is difficult to imagine. आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मिलियन ईयर्स में इतना बड़ा चेंज हो गया. आप इमेजिन करिए, India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. आप इमेजिन करो कि इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ पुश हो रहा है, राइट, बढ़ रहा है. जैमिंग अगेंस्ट, जैमिंग मीन्स स्क्वीजिंग इटसेल्फ अगेंस्ट एशिया, और वो टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया जा रहा है. टू बकल इट्स क्रस्ट. बकल जैसे शूज़ का बकल होता है ना, राइट, जो जो शू टाई करने के काम आता है, फिक्स करने के काम आता है. एंड हियर इट मीन्स इंडिया इज़ moving upwards, pushing it upwards towards the north, right, to fix, to buckle its crust. Crust is the upper layer, right, and form the Himalayas. कि इंडिया ऐसे ऊपर को आगे बढ़ता गया, और एक जो उसकी क्रस्ट थी, अपर लेयर थी, it raised above the ground level and it formed Himalayas. साउथ अमेरिका, आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि जो साउथ अमेरिका है, इट इज़ ड्रिफ्टिंग ऑफ, इट इज़ मूविंग टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्किड हो रहा है, मूव हो रहा है, राइट, एंड इट कैन जॉइन नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट. आप सिर्फ ये इमेजिन करो कि अगर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाता है, तो जो ड्रेक पैसेज है वो और ज़्यादा खुल जाएगा. व्हाट इज़ ड्रेक पैसेज? ड्रेक पैसेज जो वो एक डीप वाटर वे है, विच इज़ अराउंड 1000 किलोमीटर्स wide, and it is connecting the Atlantic and Pacific Ocean, right. और जो साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और चाइल है, they get separated from the Shetland Islands of Antarctica because of this Drake Passage, right. एक डीप वाटर वे है जो साउथ अमेरिका के केप हॉर्न एंड चाइल को अलग करता है अंटार्कटिका के शेटलैंड आइलैंड्स से, राइट. एंड दिस ड्रेक पैसेज इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन. तो अगर साउथ अमेरिका ऊपर की तरफ चला गया तो ये ड्रेक पैसेज और ज़्यादा वाइड हो जाएगा, एंड इट विल क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर current. Circumpolar coming from the polar areas, right, and rough. Current means intense winds. इससे क्या होगा, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी. Drake passage is considered as the roughest passage to cross, right, in order to reach Antarctica, keeping Antarctica frigid
इससे क्या होगा, एंटार्क्टिका और ज़्यादा फ्रिजिड और ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, डेजोलेट, डेजोलेट मीन्स आइसोलेटेड, और ज़्यादा अलग थलग हो जाएगा, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड एंटार्क्टिका विल गो डाउन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, और ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा. फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. Writer belongs to Madras, Chennai, and she says that she is a sun worship. She belongs to a sun worshipping South India, and right, sun worshipping means where sun is worshipped, plus the areas in the southern part of India, they are mainly sunny, राइट, वहाँ धूप अच्छी आती है. तो राइटर बोलती है शी बिलोंग्स टू दैट एरिया, राइट, विच रिसीव्स लॉट ऑफ सन. 2 weeks, 2 हफ्ते ऐसी जगह पे बिताना जहाँ 90% अर्थ की जो आइस है वहाँ पे है, पाई जाती है. इट्स अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट. चिलिंग मीन्स फ्रीजिंग प्रॉस्पेक्ट है. ये आइडिया आपको जमा देता है. नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, राइट. आप जिस जगह रहते हैं, राइट, दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस अफेक्ट्स योर बायोलॉजिकल सिस्टम्स एज वेल. तो वही कहती हैं कि केवल मेरे जो सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं सिर्फ वही नहीं अफेक्ट होंगे, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. मेरी जो इमेजिनेशन है इवन दैट गेट्स चिल्ड, वो भी फ्रीज हो जाती है, राइट. इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल. पिंग पोंग बॉल एक हॉलो बॉल होती है विच इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग टेबल टेनिस. वो कहती हैं अंटार्कटिका में जाना इज़ लाइक आप एक बड़ी सी हॉलो बॉल में चल रहे हो या आप उसके अंदर हो. डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स. और उस बॉल में, वो उस हॉलो बॉल में कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, राइट, या ह्यूमन बीइंग्स से लिंक्ड चीज़ें नहीं हैं. सो वॉकिंग इन एंटार्क्टिका इज़ लाइक दैट. नो ट्रीज़. वहाँ पे क्या क्या नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पेड़ नहीं हैं. देर आर नो बिल बोर्ड्स. वॉट आर बिल बोर्ड्स? ये एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं विच एडवर्टाइजर्स यूज for advertising their products, right, and they are mainly fixed alongside the roads where the traffic is, where the traffic moves. There were no buildings also. कोई building नहीं है वहाँ. You lose all earthly sense of perspective and time here. earthly sense of जब हम अपनी कंट्री में होते हैं या लैंड पे होते हैं, तो तब जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, एटीट्यूड होता है, थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, राइट, और जो एक सेंस ऑफ टाइम होता है, वी टेंड टू लूज बोथ ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू आर इन अंटार्कटिका. द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी. अगर आप पिक्चर्स की बात करें तो आपको माइक्रोस्कोपिक, छोटे से छोटी, राइट, ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़ा व्यू, चीज़ का व्यू भी मिल जाएगा यहाँ पे. मिजेस एंड माइट्स, राइट, वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें क्या हैं? मिजेस आर स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट्स, राइट, एंड माइट्स आर ऑल्सो इंसेक्ट्स दैट बाइट और कॉज इरिटेशन. ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, और यहाँ से, और फ्रॉम हियर टू द माइटी creatures like the blue whales and बड़े बड़े जो आइसबर्ग्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे. एंड आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज़. इतने बड़े आइसबर्ग्स हैं जो विच आर इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ सर्टेन कंट्रीज़. लाइक द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम. इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स भी हैं. Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. दिन बीतते जाते हैं. Surreal means जो which is not normal, very strange,
24 hour austral summer light. Austral is linked to southern hemisphere, right? दिन बीतते जाते हैं और जो 24 घंटे वहाँ पे समर लाइट रहती है या सनी रहता है वेदर, क्लाइमेट, सॉरी, राइट? आपको बड़ा अजीब लगता है वो. एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस. यूबिक्विटस होता है विच इज़ कॉमन एवरीवेयर, राइट? वहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है अंटार्कटिका में? साइलेंस. इंटरप्टेड ओनली बाय द अकेजनल एवलांच. और वो साइलेंस कब इंटरप्ट होती है या क्या डिस्टर्बेंस आती है उस साइलेंस में? कभी कभी जो कभी एवलांच आ जाता है. एवलांच इज स्लाइडिंग ऑफ स्नो और स्नो स्टॉर्म्स. और calving ice sheet. calving is breaking of ice chunks from glaciers. या कभी कभी आइस की शीट्स जो ग्लेशियर्स से टूट जाती हैं, द साउंड विच दे प्रोड्यूस, ये आपको सुनाई देता है. विच कंसेक्रेट्स द प्लेस. कंसेक्रेट होता है जैसे किसी चीज़ को पवित्र बना देना, शुभ बना देना, राइट? तो इट सीम्स लाइक द साउंड ऑफ द एवलांच एंड द साउंड ऑफ breaking of the ice chunk, they make the place, they make Antarctica a holy place, a pious place. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history. Going to Antarctica, right, and experiencing it is like an immersion. Immersion is when you get when you're dipping something, right? Or when you get absorbed in something that will force you to place yourself in the context. आप उसके अंदर इतना ज़्यादा समा जाते हो कि आप अंटार्कटिका को उसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बेसिस पे स्टडी करना चाहोगे या देखते हो, राइट? जियोलॉजिकल मीन्स लिंक्ड टू इट्स जोग्राफी. आप उसकी हिस्ट्री को उसमें आप खो जाते हैं, समा जाते हैं. And for humans the prognosis is not good. And when you try and immerse yourself in the geographical history of the place, right, as far as human beings are concerned, वो जो prognosis है उस चीज़ का, right, जो symptoms हैं जो अंटार्कटिका में अभी हैं, prognosis means symptoms, right, या जो judgment आप निकालते हो after understanding, right, how things are going on there, it is not good for human beings. Human impact, right? अब the writer talks about कि humans का क्या impact, क्या असर है उस जगह पे. Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years. Paltry means which is very small in amount. Human beings को अभी अर्थ पे आए हुए सिर्फ 12,000 years हुए हैं. Barely a few seconds on the geological clock. अगर हम अर्थ की जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो ये तो कुछ सेकेंड्स हैं, राइट? In that short amount of time we have managed to create quite a ruckus. Ruckus means confusion. और इतने कम टाइम पे अर्थ पे आने के बावजूद हमने अर्थ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, नॉइज़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है. एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर. एचिंग मीन्स एनग्रेविंग. हमने हर जगह अपनी डोमिनेंस नेचर के ऊपर, राइट, एनग्रेव कर दी है, लिख दी है. विद आर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़, मेगा सिटीज़. क्या बनाकर अर्थ पे? अपने गांव, शहर, राइट, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़, बड़े बड़े शहर बना के. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज़ फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अर्थ ने हमें दिए हैं, राइट, हम बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ह्यूमन बींग्स जो अदर स्पीशीज़ हैं अर्थ पे, हम लोग ऐसे लगता है आपस में वी आर फाइटिंग, राइट, to use those limited resources. And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. Unmitigated, which is not diminished, which is not decreased. और हम क्या नहीं बंद कर पाए हैं, कम नहीं कर पाए हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स का जो जलाना है, राइट,
या यूसेज इतनी ज़्यादा है कि नाउ हमने अब क्या क्रिएट कर दिया है, अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। जब हम पेट्रोल एंड डीजल, राइट, या फॉसिल फ्यूल किसी भी फॉर्म में जब हम बर्न करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, एंड which has blanketed or the whole world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। ये आज की डेट में हर किसी को पता है कि इसकी वजह से पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। आजकल जब भी कोई डिबेट, राइट, कोई डिस्कशन होती है, तो उसमें एक सबसे हॉटली कंटेस्टेड या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आजकल यही होता है, राइट, और वो होता है क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? राइटर इज आस्किंग अस कि क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट है, क्या वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्ट्रप्टेड? अब गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक ओशन करंट है दैट ब्रिंग्स वार्म वाटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको इनटू द अटलांटिक ओशन। तो ये जो वार्म वाटर वहाँ से आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, तो क्या ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? राइट, आपको पता होगा ना, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, द टेम्परेचर विल राइज, द ice which is there on both the north and the southern pole, it will melt and the whole earth will get submerged in water। तो writer is mentioning the same thing कि will it be the end of the world as we know it? हम जानते हैं कि इस तरह से earth end हो सकता है, तो will it really prove true? Maybe, maybe not। हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता। ईदर वे, चाहे कुछ भी हो, एंटार्क्टिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। ऐसे जब भी डिबेट्स होते हैं तो उसमें एंटार्क्टिका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अर्थ में एक ऐसी जगह है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब होता है टू कीप समथिंग अलाइव, राइट। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, राइट, इट हैज़ नेवर केप्ट समथिंग अलाइव। यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट। इट हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव देयर एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। इफ़ वी टॉक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके रिलेशन में, उसके कंपैरिजन में ये अभी भी प्रिस्टीन है, प्योर है। Human beings have not inhabited the place, or say they have not polluted the place. But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर इसके जो आइस कोर्स हैं, what are ice cores? Ice cores are cylinders of ice drilled from ice sheets and glaciers। जो स्टडी करने के लिए सिलेंडर्स ऑफ आइस, राइट, दे आर ड्रिल्ड फ्रॉम द आइस शीट्स। तो जब हम उनको स्टडी करते हैं, दे हैव 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स। 500,000 year old भी कार्बन रिकॉर्ड्स उसके अंदर हैं। कार्बन रिकॉर्ड मीन्स द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड stored in the ice। We get information about carbon records means carbon is level of carbon dioxide and records is the information stored, right, about the level of carbon in those ice cores। They contain ice, the ice contains tiny bubbles of carbon dioxide। तो हम we can study through the level of carbon dioxide present in those tiny bubbles of carbon, right, in those tiny bubbles, and know more about history trapped in its layers of ice। We can know more about our past, our history from the
carbon records present in the layers of ice in Antarctica. If we want to study and examine the Earth's past, present, and future, Antarctica is the place to go. These lines were stated in the beginning of the lesson also कि अगर हमें अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को स्टडी करना है तो एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो. Students on ICE, the program I was working with on the Shokalski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. This is again very important. एक program है, right, जो research program जिस पे writer is also working, वो है students on ice, right. वो जो academic Shokalski जो उनका vessel है, ship है, right, जिसके थ्रू वो जा रहे हैं अंटार्कटिका में, उसका एम क्या है, राइट. वो एग्जैक्टली यही काम करना चाहता है, राइट. वो चाहता है टू अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. बट वो किन को लेके जा रहा है अंटार्कटिका? हाई स्कूल स्टूडेंट्स. जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, से द स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 10 स्टैंडर्ड, राइट, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. एंड उनको प्रोवाइड कर रही हैं किससे? इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. बच्चों के लिए अंटार्कटिका जाना एंड टू स्टडी इट एंड टू सी थिंग्स विद देयर ओन आइज, एक्सपीरियंस थिंग्स, राइट, टू गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एंटार्कटिका. ये बहुत इंस्पायरिंग और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी होती है which will help them foster means encourage a new understanding and respect for our planet. जब छोटे बच्चे वहाँ जाएंगे और सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे where the earth is heading, so they will understand and respect our planet in a better way. It has been in operation for 6 years now. The writer tells us कि ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये पिछले 6 साल से चल रहा है. हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन. और इनके जो हेड हैं, ही इज़ कैनेडियन, ही बिलोंग्स टू कैनेडा, जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. पहले वो किन को लेके जाते थे वहाँ? कार्टिंग मीन्स कैरिंग. सेलिब्रिटीज़ को लेके जाते थे, रिटायर्ड रिच लोगों को लेके जाते थे, या फिर जो क्यूरियोसिटी सीकर्स होते थे, उनको सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती थी, जानने की इच्छा कि वहाँ अंटार्कटिका में कैसा क्लाइमेट है या क्या चीज़ें हैं वहाँ. पहले वो उनको लेके जाते थे हु कुड गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. लेकिन ये जो लोग थे, ये वहाँ जाते तो थे, लेकिन ये वहाँ से वापस आने के बाद दे कुड डू वेरी लेस, राइट, फॉर मेकिंग द थिंग्स बेटर. या वो लिमिटेड वे में कुछ कर पाते थे अपने लेवल पे. विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स. ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जियोफ ग्रीन, अब वो एक फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो आज के जनरेशन है, वो आने वाले टाइम में दे विल बी एट हाई पोजीशन, दे विल बी मेकिंग पॉलिसीज़ ऑल्सो. तो वो एक फ्यूचर जनरेशन को, ठीक है, जो आगे जाके पॉलिसीज़ भी बनाएंगी, तो वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एक ऐसी एज पे दे रहे हैं, एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली act, right. Young students are very energetic, so he is giving them a life changing experience. This experience of visiting Antarctica can change anyone's life. So when they are young, they can absorb things in a better way, they can learn in a better way, and most importantly, when they grow up, they will be able to act over what they have learned, what they want to implement in order to save our planet. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole.
राइटर कहती हैं ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस ये इसलिए भी सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि साउथ पोल के आसपास जाना तो पॉसिबल ही नहीं है एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। और अगर आप चले भी गए और आप सोचो कि आप पे उसका कुछ असर ही नहीं होगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट्स ईजी टू बी ब्लाजे about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, right? Sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude means आप अपने घरों में आराम से बैठ के it's easy to be blase। blase means unimpressed। आप टीवी पे देखते हो कि all right the ice is melting तो आप you don't get affected, आप पे उसका इतना असर नहीं होता, ठीक है। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, जब आप खुद जाके यू कैन सी कि जो ग्लेशियर्स हैं दे आर रिट्रीटिंग, दे आर मेल्टिंग, राइट। एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, कि बड़ी बड़ी आइस की शेल्व्स टूट रही हैं मेल्ट होके, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तब आप जाके ये सच में रियलाइज़ करते हो कि ये जो डेंजर है ग्लोबल वार्मिंग का ये कितना सच है, रियल है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Antarctica क्योंकि उसका एक बहुत सिंपल सा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम इज़ the relationship of plants, animals and their surroundings, right? Ecosystem is a system where plants, animals और उनके surroundings they live in association with each other। क्योंकि वहाँ पे simple सा ecosystem है and there is lack of biodiversity। biodiversity means life form, बहुत ज़्यादा life forms नहीं है, organisms नहीं है वहाँ पे। It is the perfect place to study। वो एक perfect जगह है ये study करने के लिए कि how little changes in the environment, कि environment में अगर बहुत छोटा सा भी चेंज होगा अगर इट कैन हैव बिग रेपरकशंस। रेपरकशंस मीन्स रिजल्ट, आउटकम, उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइटर हैज़ गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम, कि अगर आप एक छोटी सी चीज़ को चेंज करोगे तो उसका इन टर्न बड़ा रिजल्ट क्या होगा। तो ही सेज आप एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन को ले लो। फाइटोप्लैंक्टन्स आर plant-like organisms, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। ये ऐसी छोटी छोटी घास के जैसे होते हैं सी में, ठीक है, जो नरिश करते हैं, जो पालते हैं। एंड सस्टेन मीन्स हेल्पिंग कीपिंग अलाइव सदर्न ओशंस फूड चेन। इनको क्रिएचर्स खाते हैं, फिर छोटे क्रिएचर्स को बड़े क्रिएचर्स खाते हैं, तो दिस इज़ हाउ द फूड चेन कंटिन्यूज। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis। ये छोटे से जो सिंगल सेल के प्लांट्स हैं ये सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं टू एसिमिलेट, एसिमिलेट होता है टू एब्जॉर्ब, सन की एनर्जी यूज़ करते हुए कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दे सिंथेसाइज, व्हाट डू दे प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, राइट। एंड इन दैट वंडरस, फुल ऑफ वंडर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये सन की एनर्जी से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दिस इज़ हाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देम, दिस इज़ हाउ दे प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स।
Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. जो साइंटिस्ट हैं वो हमें वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन लेयर में और ज़्यादा डिप्लीशन हुआ, ठीक है, तो उससे जो ये एक्टिविटीज़ हैं फाइटोप्लैंक्टन की ये भी डिस्टर्ब होंगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स, राइट, क्योंकि ये इनको बाकी मरीन वाटर एनिमल्स खाते हैं, अगर यही खाना बनाना बंद कर देंगे तो indirectly the lives of other water animals will also get affected, and the lives of birds of the region will also get affected, and the global carbon cycle also, world over जो carbon cycle है वो भी indirectly affect होगी. In the parable of the phytoplankton, parable is a story with a moral lesson. तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन का जो हमें लाइफ से हमें जो सीख मिलती है, राइट, एक छोटा सा प्लांट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल द लाइफ फॉर्म्स अलाइव इन एंटार्क्टिका. देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस. राइटर यहाँ पे एग्जिस्टेंस और फाइटोप्लैंक्टन के बीच में एक मेटाफर क्रिएट कर रही है. मेटाफर क्या होता है? व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स एंड द कंपैरिजन इज इम्प्लाइड. आपने एक चीज़ को बोल दिया कि ये ऐसी है, तो फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स हैव बीन कंपेयर टू एग्जिस्टेंस, राइट. फाइटोप्लैंक्टन्स हैं तो एग्जिस्टेंस है. टेक केयर ऑफ the small things and big things will fall into place. Very important and wonderful line कि आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएंगी. दे विल फॉल इनटू प्लेस ऑन देयर ओन. वो भी अपने लेवल पे अपने आप ठीक हो जाएंगी. वॉक ऑन द ओशन, राइट. अब राइटर जो है शी गेट्स ऑफ द शिप टू वॉक ऑन द ओशन. सो लेट्स सी व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर. माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज. एपिफनीज होता है रियलाइजेशंस, जो आपको लाइफ में रियलाइजेशन होती है चीज़ों के बारे में. तो राइटर को बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई एंटार्क्टिका में जाके. But the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. लेकिन सबसे बेस्ट रियलाइजेशन तब हुई जब वो एंटार्क्टिक सर्कल तक पहुंचने वाले थे at 65.55 degrees south. The Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. जो उनका शिप था academic Shokalski, it had managed to wedge होता है फिक्स हो जाना, ब्लॉक हो गया था वो, into a thick white stretch of ice. आइस के बीच में एक जगह आइस थी. एंड बिटवीन द पेनिनसुला इज़ एन एरिया ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर. एक तरफ सी है एक तरफ आइस है, वहाँ बीच में जाके ये शिप स्टक हो गया. एंड द टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर. और इनका शिप फिर मूव नहीं कर पा रहा था. The captain decided we were going to turn around and head back north. कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम शिप को टर्न करेंगे और नॉर्थ की तरफ चलेंगे. बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन. लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ से मूव करते टुवर्ड्स द नॉर्थ, इनको इंस्ट्रक्शंस मिली कि हमको सबको नीचे उतरना है. द गैंग प्लैंक क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एक मूवेबल प्लैंक होता है, लकड़ी का फट्टा होता है, विच इज़ यूज फॉर बोर्डिंग और डिसएम्बार्किंग फ्रॉम अ शिप और बोट. जो किसी बोट में या शिप में चढ़ने के और उतरने के काम आता है. तो हम उस पर चढ़े एंड वॉक ऑन द ओशन, राइट. तो वो जो थोड़ा सा जो ओशन का पार्ट था उस पर हम चले. सो देयर वी वर. तो देखिए अब हम वहाँ थे. ऑल 52 ऑफ अस, देयर वर 52 पीपल देयर, kitted out in Gore-Tex
right? Tex comes from textile, kapda. Gore-Tex is a kind of waterproof clothing which is used for outdoor sports. तो हमारी जो किट्स थी गॉटेक्स की बनी हुई, और जो हमारे ग्लेयर्स थे, जो हमारे गॉगल्स थे, वो हमने पहने हुए थे. वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, राइट? स्टार्क मीन्स एक्सट्रीम वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. ऐसा लग रहा था वो जो आइस है, वाइटनेस है, वो हमेशा या मतलब हर जगह फैली हुई है. अंडरनीथ आर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक. हमारे पैरों के नीचे कम से कम 1 मीटर के आइस थी, फ्रोज़न. एंड अंडरनीथ दैट, और उस 1 मीटर आइस, फ्रोज़न आइस के नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, राइट? तो वो जो ओशन का जो अपर पार्ट था वो तो फ्रोज़न था, और उसके 180 मीटर्स डाउन वाटर था, राइट? लिविंग ब्रीदिंग फुल ऑफ लिविंग marine creatures, and of course it had salty water. In the periphery, crab periphery means on the outskirts, किनारे पे crab eater seals were stretching. राइटर बोलती हैं जो क्रैब को खाती हैं, जो सील्स होती हैं, राइट? seals are water animals. They were stretching and sunning themselves on ice floes. Ice floes are a sheet of floating ice. वो sheets of floating ice पे बैठी हुई थी. They had stretched themselves, और वो धूप सेक रही थी, ऐसा लग रहा था. Much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. And she has compared the same to the stray dogs, right? कि इंडिया में जो stray dogs होते हैं वो जैसे किसी बनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे रिलैक्स करते हैं, वैसे ही द क्रैब ईटर सील्स वर रिलैक्सिंग देयर. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन. रेवलेशन मीन जब आपको कुछ रियलाइजेशन होता है, राइट? विच समथिंग मेड नोन टू यू. एवरीथिंग डज इंडीड करेक्ट. तो राइटर कहती है ये ऐसा, वो एक रेवलेशन से कम नहीं थी वो चीज़, राइट? जो मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया, कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि हर चीज़ आपस में एक दूसरे से ज़रूर कनेक्टेड होती है. 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स. राइटर रिपीट्स द सेम थिंग कि 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, checking points, 3 bodies of water, right? 3 oceans and many ecospheres later. और काफ़ी सारे इकोस्फीयर्स के बाद को क्रॉस करने के बाद, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस एंड प्ले ऑन आवर प्लानट. मैं अभी भी आई वॉज वंडरिंग कि जो हमारा प्लानट है, राइट, इसमें अभी भी हर चीज़ कितनी ब्यूटिफुली बैलेंस्ड है. हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी. तब क्या होगा अगर अंटार्कटिका वैसी ही गर्म वार्म प्लेस बन गई जैसे वो पहले हुआ करती थी. विल वी बी अराउंड टू सी इट. क्या हम जिंदा रहेंगे तब तक ये देखने के लिए? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोज. या हम भी उसी तरह से तब तक अर्थ से डिसअपियर हो जाएंगे जैसे कि डायनासोर्स हो गए, मैमथ्स हो गए. मैमथ्स वर ह्यूज एलिफेंट्स, बिग एलिफेंट्स, and woolly rhinos. Who is to say? कौन कह सकता है कुछ? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism means values, to save the world. लेकिन जब आप 2 हफ्ते बिताते हैं, राइट, विद अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स जिनमें अभी भी आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं कि उनको वर्ल्ड को सेव करना है, प्लैनेट को सेव करना है, ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स. मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इतने मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स. लेकिन एक दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, टू ब्रिंग बैक टू ब्रिंग अ चेंज इन द प्लैनेट, right, to create a change in the circumstances.
So the writer ends the lesson by saying that we need to start conserving our planet right from today, so that in the years to come our efforts bear fruit and the planet is saved, and the Antarctica also uh, remains full of ice, right, and no global warming takes place. Thank you.